Welcome students. In today's session we are taking the want of factor I, the important tips for the MCQ solution. Students, here we can see that number of solute particles or concentration of solute particles it is directly proportional to the boiling point. Directly proportional to osmotic pressure. Inversely proportional to vapor pressure. And inversely proportional to freezing point. Okay, again, number of solid particles or concentration of solid particles are directly proportional to boiling point and osmotic pressure and inversely proportional to the vapor pressure and the freezing point. Students, here we can see that when we take number of solid particles and when we take concentration of solute, so for that one example is taken. Suppose we are taking that which of the following solutions has highest freezing point. This is the question and I am writing total 2 MCQ. Okay, so with the help of MCQ we will learn that when we take number of solute particles and when will we take the concentration of solute particles. Okay, chalo A, B, C and D. Option number 1. .1 molar K4FeCN6. Second one is 0.1 molar urea. Third one is 0.1 molar AlCl3 and 0.1 molar K2SO4. Okay, chalo. So in first one we can see that all have same concentration. So whenever same concentrations are given, at that time we will consider only the number of solute particles. Okay, concentrations are same, then consider just the number of solute particles. चलो कितने particles होंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे particles होंगे 5. कैसे? K4 and whole bracket is considered as a single ion. So that total solute particles are 5. Urea 1 molecule equals 1 solute particle. I equals 1. AlCl 3 Cl and 1 Al total 4 solute particles and K2 and SO4 1 total 3 solute particles. Now here you are asked that freezing point highest, maximum freezing point. So freezing point is the highest, number of solute particles will be least because inversely proportion. तो inversely proportion में ऐसा क्या होता है? Suppose मैं 4 numbers लिख रहा हूँ, 5 then 12 then 36 and then 74. तो आपको पता है हाईएस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर कौन सा है? सो वी नो दैट 74. लेकिन अगर उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो जिसका जो बिगेस्ट नंबर होगा उसी का रेसिप्रोकल द लीस्ट नंबर होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शन में जो भी चीज होगी ना, फ्रीजिंग पॉइंट
और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, तो फिर हम इनवर्ट गिनेंगे, मतलब हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मींस द लोएस्ट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स लोएस्ट कौन सा है? तो यस, आंसर इज बी, बॉम्बे। सो हियर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर द लीस्ट। Okay, that's why we will consider this. Next thing, suppose here we are taking 0.02 molal AgNH3 twice OH. Okay, second is 0.08 molal Al2SO4 thrice, 0.2 molal KNO3, and the last one 0.01 molal K3PO4. Okay, K3PO4, potassium phosphate. ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशंस देखो चारों में डिफरेंट है, और सॉलिड पार्टिकल्स तो वो तो ऑब्वियस डिफरेंट ही होंगे। ओके, सो एट दैट टाइम वी विल कंसिडर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। और वो कैसे हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे जो आपको दिया है AgNH3 ट्वाइस पूरा ब्रैकेट 1 और OH1 टोटल 2 सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो 2 पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय 0.02 तो टोटल होगा 0.04 मोलल। यहां पे हम लेंगे Al2SO4 थ्राइस, तो टोटल 5 इंटू 0.08, मतलब जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन से। सो हियर इज 0.4 मोलल। चलो यहाँ पे होगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगेन 0.4 मोलल, और लास्ट में K3PO4। चलो उसकी जगह पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, .03। तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स है 4 और ये मल्टीप्लिकेशन जिससे आपको मिलेगा 0.12 मोलल। तो अब देखो चारों ऑप्शंस में अगेन हम देखेंगे क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स नहीं देखेंगे तो फिर क्या देखेंगे हम? कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हाईएस्ट किस में है? ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू और ये फोर्थ वैल्यू। तो लीस्ट नंबर मतलब अगेन फ्रीजिंग पॉइंट द हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, या तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विल बी द लोएस्ट। तो लोएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे है? दैट इज 0.04 मोलल। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसा हम देखेंगे। और एक चीज, अब सपोज यू आर आस्क्ड दैट द इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलो फ्रीजिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो फ्रीजिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगेन फ्रीजिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑपोजिट है ना दोनों, रेसिप्रोकल है इसलिए। सो आंसर क्या होगा अपना? चलो ए इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो फिर दूसरा होगा C, देन D एंड देन B। तो ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। सिमिलरली चलो यहां पे हम लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इनडायरेक्टली दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया। ओके, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हम क्या लिखेंगे? अगेन ए, उसके बाद 0.04 से ज़्यादा कंसंट्रेशन कौन सा होगा? 0.12 डी,
और उसके बाद बी और सी दोनों का सेम है ना, तो चलो ऐसे हम लिख पाएंगे ए डी बी इक्वल सी, दोनों के बीच में इक्वल्स आएगा। इजी। सो दिस वन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और अब ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला एक 1 2 3 और 4 टर्म्स है। सो यू कैन बी आस्क्ड एनी वन। फंडामेंटल यही है, कंसंट्रेशन सेम, then number of solid particles, concentrations are different, then concentration of solid particles. ओके तो अब देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल concentration, here concentrations are different in all cases. So concentration of solid particles is directly proportional to osmotic pressure. चलो इतना तो पहले समझ में आ चुका होगा। FeSO4 के सॉलिड पार्टिकल्स कितने होंगे? 2, Fe and SO4. So 2 multiplied by 0.01, so it is 0.02 molar. In second one, glucose has solid particles 1 into 0.2, so 0.2 into 1, that is 0.2 molar. K3 FeCN6 bracket is whole 1 and K3 total 4 solid particles, so 0.02 multiplied by 4, it is 0.08 molar. And the last one is Hg2Cl2. See here, remember that Hg2 2 plus is a whole considered is a 1 ion, okay, and 2Cl minus, so total solid particles will be 3. So that 0.1 multiplied by 3, तो इतना आपको याद रखना है। ऐसा ही दूसरा एक केस है Cu2Cl2, इसमें भी टोटल सॉलिड पार्टिकल्स 3 ही होंगे। कैसे? Cu2 2 plus 1 and 2Cl minus. Thus we are getting 3 ions. Here also we are getting 3 ions, not 4 ions. Hg2 मतलब twice है, नहीं, ये Hg2 2 plus is considered whole 1 ion. So total is 0.3 molar. So now increasing order of osmotic pressure means increasing order of concentration. तो least concentration कहाँ पे है? That will be A. Then second one will be C, then B, and then D. So correct answer is A, C, B and D. Okay, next question. Which has the highest boiling point? ओके और उसके लिए पहले से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 ऑप्शंस, ऐसे ही इस फॉर्मेट में ही लिख देता हूँ। यू आर गिवन जस्ट 1% ग्लूकोज, 1% NaCl, 1% K2SO4 and 1% FeCl3. तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ध्यान से देखो। हियर यू आर गिवन 4 टर्म्स एंड ऑल टर्म्स हैव परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल percentage is given. So in our syllabus there are 3 types of percentages: W by W, W by V and V by V. Now boiling point वाला जो फॉर्मूला है उसमें Kb इक्वल्स डेल्टा Tb बाय मोलालिटी इंटू आई, याद है ना, हम ये कंसिडर करते हैं। ओके हम ये कंसिडर करते हैं। तो इसमें मोलालिटी, और मोलालिटी जो टर्म है वो मास बेस्ड है। That's why here you are given only percent, but we will consider here percentage W by W. अगर आपको हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया होता तो हम कंसिडर करते परसेंटेज W by V। परसेंटेज V by V है, इसमें तो फिर आएगा ही नहीं। ओके नेक्स्ट, अब 1% ग्लूकोज आपको ये दिया है, तो 1% W by W ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या होगा? 100 ग्राम सोल्यूशन में 1 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व है, या तो फिर 1 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 99 ग्राम ऑफ वाटर। सिमिलरली दिस वन 1 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in
99 gram of water. Here 1 gram of K2SO4 is dissolved in 99 gram of water. ओके अब ये तो पता चल गया होगा कि सब जगह 1 ग्राम ही लिखा है, यहां पे भी आएगा 1 ग्राम ऑफ FeCl3 is dissolved in 99 gram of water. ओके तो अब हम यहां पे मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन कंपाउंड हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलो W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1, चलो ये तो पता ही है सबको। ओके तो यहां पे मैं साइड में आइटम्स लिख देता हूं, तो ये होगा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अब देखो ग्लूकोज का सॉलिड पार्टिकल 1, W2 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, मास ऑफ वाटर इज 99, वो तो सब जगह कॉमन रहेगा, और M2 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है, इट इज 180। चलो अब सेकेंड वन, अब मैं डायरेक्ट टर्म्स लिख रहा हूं यहां पे, फॉर्मूला तो ये है ही क्योंकि हमें जल्द से जल्द आंसर चाहिए। I सॉल्यूट पार्टिकल NaCl का सॉल्यूट पार्टिकल्स 2 है, मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1 ग्राम 1000, मॉलिक्यूलर मास NaCl का होगा 58.5, Cl का 35.5, सोडियम का 23, मल्टीप्लाइड बाय 99। ओके चलो यहां पे क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ K2SO4, तो K2SO4 के सॉल्यूट पार्टिकल्स 3, 1 ग्राम 1000, मॉलिक्यूलर मास K2SO4 का, पोटाशियम का 39 2 78 और SO4 का 96। चलो 78 में से 4 माइनस कर दो, 74 एंड 100, तो इट इज 174 एंड 99 मास ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली हियर FeCl3 का 4, 1, 1000, 99, तो अब क्या बचा यहाँ पे, Fe का 56 और 3 Cl, 1 Cl का 35.5, 3 Cl का होगा 105 एंड 1.5, 106.5, सो 0.5 6 162.5। ओके हमें पूरा आंसर नहीं लाना है, अब इसमें से हमें लीस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम कैसे करेंगे, अब देखो यहां पे 1000 और 99 साइड में रख दो, चलो 1 भी साइड में रख सकते हैं, 1, 1000 एंड 99, चलो देखो सब में ये टर्म है ही, बाकी का क्या बचा 1/180, यहां पे क्या बचा 2/58.5, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/58.5 का भी हाफ, ये 2 डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये होगा 29.25। सिमिलरली यहां पे देखो 3/174, तो चलो ये भी नीचे जाएगा, तो ये आएगा 1/3 5 15, then 24, 3 8s 58, and last one 1 by, तो 162.5 का भी 4 टाइम्स, फोर्थ पार्ट, तो ये होगा 4 4s then 0, then 4 6, ऐसा कुछ होगा। ओके इसके अराउंड कुछ होगा। अब देखो अब पता चल जाएगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब है हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे तो डिफरेंट होंगे क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो हम क्या गिनेंगे हाईएस्ट कंसंट्रेशन। तो चलो हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसका होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो कॉमन टर्म है सब में चारों में, वो उसके अलावा बाकी के टर्म पे कंसंट्रेट करो। चलो यहाँ पे 1/180, 1/29.25, तो किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा कि जिसका डिनोमिनेटर द लीस्ट होगा, तो कौन सा आया बी बॉम्बे।
So 1% NaCl has the highest boiling point, क्योंकि 1% NaCl का उसकी मोलालिटी हाईएस्ट है. कैसे पता चला मोलालिटी हाईएस्ट है? क्योंकि डिनोमिनेटर में लीस्ट टर्म आती है इसलिए. ओके चलो इसको सपोज हमें सेट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. चलो बोलो क्या होगा अब. तो पहले किसका आएगा? बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे ज्यादा, मतलब उसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, तो वो था बी. अब सेकेंड वन क्या आएगा? डी 40.6 है ना. देन सी एंड देन ए. सो अवर आंसर इज बी डी सी ए. बी डी सी एंड ए. Okay students, then consider the given question. pH of 0.2 molar dibasic acid. Dibasic acid means 2 H plus are formed from 1 mole of H2A. Okay? तो उसके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे टोटल 3. अब 0.2 मोलर एसिड की pH आपको दे दी है 1.699. तो आपको पूछा है एट T केल्विन टेम्परेचर व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो उसका फॉर्मूला तो एकदम सिंपल, पाई इक्वल्स I इंटू सी इंटू आर इंटू टी. सी वी नो 0.2 मोलर, सी इट इज गिवन. R एंड T, सो ओनली वन टर्म इज रिमेन दैट इज I. तो I कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो उसके लिए आपको क्या दिया है, एसिड का कंसंट्रेशन और उसके H प्लस का कंसंट्रेशन. ओके एसिड का कंसंट्रेशन 0.2 मोलर और उसके H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है तो वो नहीं पता, लेकिन pH इज गिवन टू यू 1.699 और उसके H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा 10 - 1.699. इसका मतलब क्या है पता है, एंटी लॉग ऑफ -1.699 ऐसे कुछ होगा. तो अगर एसिड का कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो सामने जो आएगा दैट इज अवर अल्फा. क्योंकि अगर परसेंटेज कैलकुलेट, अगर 100 पे कैलकुलेट करें फिर उसके बाद अल्फा कैलकुलेट करना हो तो फिर हमें 100 पे इतना तो 1 पे कितना. तो ये आपको याद होगा कि अल्फा इक्वल्स परसेंटेज डिसोसिएशन बाय 100 हम करते ही थे. तो इसका मतलब हम पहले से 1 ही ले लें. तो एंटी लॉग ऑफ -1.699, चलो माइनस का तो एंटीलॉग पॉसिबल नहीं है, पॉइंट के पहले 2 बार और उसके पहले 3. तो इसका मतलब क्या है पता है, एंटीलॉग ऑफ आपको किसका फाइंड आउट करना है 2 बार 0.3. चलो 0.3 किसका लॉग पता है 0.3010 2 का लॉग है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², ये होगा H प्लस का कंसंट्रेशन. ओके तो फिर से लिखता हूं मैं, एसिड H प्लस, एसिड का कंसंट्रेशन 0.2 मोलर, उसके H प्लस का कंसंट्रेशन 0.02 मोलर. तो अगर ये 1 है तो फिर सामने कितना होगा, सो इट इज 0.02 बाय 0.2 दैट इज 0.1. सो दिस इज अवर अल्फा. अब अल्फा मिल गया, अल्फा का फॉर्मूला है I-1/n-1. चलो व्हाट इज n? n इज सॉलिड पार्टिकल्स दैट इज 3, क्योंकि 2 H और 1 A मीन्स एनायन, नेगेटिव आयन. तो टोटल 3 पार्टिकल्स हुए, तो 3 - 1 इज 2. सो I = 1 + 2 अल्फा होगा. कैसे? चलो वो तो पता है ना, 3 - 1 इज 2, 2 सामने गया मल्टीप्लीकेशन में, 2 अल्फा, -1 अनदर साइड गया, 1 + 2 अल्फा. सो 1 + 2 अल्फा क्या है 0.1. तो मल्टीप्लीकेशन से क्या आया 1.2, तो यहाँ पे 1.2 लिख दो. अब कितना होगा, ये 1.2 आया. ओके ये 0.2, तो टोटल कितना हुआ 0.24 RT. तो मतलब नियर बाय आंसर है अपना A. यस डन.
सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, 24.24 दिया ना, और कोई कहीं पे है ही नहीं. सो दिस इज़ अवर आंसर.